Hello, everyone. So, in the previous class, we have discussed about your MSc, MAE, RMSc, and R2 score in regards with an example. ठीक है, वो क्लियर हो गया. That is fine. उसके बाद I told y equal to mx plus c. This is your equation of a line. ठीक है, ये बोला मैंने. Okay, तो how to write this thing in a matrix notation? because because if I am having multiple variables, okay, so in form of linear uh, equation I can write like this: beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2, like this, where y is the target variable, x1 x2 are the features. Take beta naught, beta 1, beta 2 are are your parameters or the coefficients, whatever you want to say you can. ठीक है, तो ये मेरा टारगेट, दीज आर माय फीचर्स, और ये मेरे कोएफिशिएंट्स, जिसमें कि यू से बीटा 1 एंड बीटा 2 आर द स्लोप एंड बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट. ठीक, तो आई वांट टू राइट दिस थिंग इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्मेट. व्हाट आई डिड, बीटा नॉट इज इन अभी सिंगल है वो. Okay, I don't have anything with the beta naught. So what I'm going to do is I am multiplying it with the feature. Let us suppose its name is x naught. इस multiply कर दिया मैंने. I'm multiplying this thing with the feature that is x naught, and then beta 1 x1 plus beta 2 x2. Okay, ऐसा लिखा. तो you can see I am having a dot product of matrices. If I transform, तो इसको x naught से I did multiplied. तो भाई बीटा नॉट was individually present there, and we know if it was individually present there, I need to multiply this by 1, then only I can retain the value. ठीक है, तभी I can achieve. तो it's quite clear that x naught should have to be 1. So the question came to me today that, sir, you have taken x naught as 1. This means how you added this one. Okay, why I added this one? Because of this reason. Beta naught was present individually. I took a term from my side and I told that it is x naught. Okay, so I multiplied beta naught with x naught. Okay, and x naught, obviously it should have to be 1. So in the code which you have seen yesterday, वहां पर it has been told कि आप np dot once जो है ये क्रिएट करिए, np dot once, and then add this np dot once to the original फीचर्स, x के साथ उनको ऐड कर दीजिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वंसेस आई एम क्रिएटिंग. तो इफ आई वांट टू राइट दिस थिंग इन अ मैट्रिक्स नोटेशन, तो ये आपका डेटा, दिस इज योर डेटा सेट. ओके, फाइन, दिस इज योर डेटा सेट. लेट अस सपोज दिस इज टारगेट y, दिस इज x1 x2 x3 x4. x नॉट मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव एनी x नॉट हियर. ओके, तो how I write this thing into a 2D representation, okay, of a matrix format like this, है ना. ये मेरा y का सारा वैल्यूज होगा. Here I will be having x1 values, x2 values, x3 values, x4 values. अब what I did from my side, if I want to convert tune of this thing into linear relationship, I am having x naught also, that क्योंकि वो बीटा नॉट था. ठीक है, I am having इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट के साथ मैंने क्या करा, x naught जो है I did multiplied. So in that particular case I will be adding x naught also, and its values will be all ones. ठीक है, तो in my data set I will add one more column जो कि होगा x naught,
और इसका सारा वैल्यूज विल बी वन, एंड दीज आर योर ओरिजिनल फीचर्स, वट एवर दे आर, ठीक है, वो रहेंगे। ये जो है एक्स नॉट, इसका सारा वैल्यूज दैट विल बी वन, एंड रेस्ट यू कैन फिल अप द एंट्रीज विद योर x1 x2 x3 x4, दिस यू कैन डू। और ये आपका जो है टारगेट है y का वैल्यूज। सो दिस इज द मैट्रिक्स 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, ठीक है। नाउ श्री, any doubt please let me know. You asked, sir, why I did took one. Okay, so obviously now I need to multiply something with beta naught, and it should have to be one only, na? Then only I can retain beta naught, and that one will be x naught, and x naught will be written as like this: one 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 one. It will be complete matrix of one according to the length of your data. Length of your data, that much number of ones will be here. Okay, and one more question came to me, sir. How you have? Yes, sir. Baban sir, ask the question. I think when you are multiplying, you are missing the column of beta naught. Like if you Uh, scroll down this page. Here, I think there should be beta naught column here before the equal sign, right? Because you have to multiply. If you are oh, adding column of ones, huh. you have to multiply beta naught column because Sir, then it will be complete. sir, that I will do ahead. No, beta naught is the Okay, okay. So coefficients. you Sir, I need to okay. completely multiply all the beta terms with all the x terms. So overall, I will be writing No, like no, this: no. x So transpose you don't need dot dot beta. no, no. In this case, what I'm saying, you are far higher than me. I'm one step behind you. Okay. So if you on the same scale, okay. Huh. So over here, if you are adding column of ones, Hmm. right? Hmm. You cannot just add, right? It has to be some logic, Hmm. right? Hmm. So over here, okay, before equal sign, if you add column of beta one, what will happen is you are multiplying a column with column. So the matrix will remain the same. One will be remaining the same, but you are multiplying a column to a column where like your first column will be multiplication of 1 into beta 1. Next row will be 1 into beta 2. Third row will be 1 into beta 3, beta 2, 2, like Huh. so. Okay. X not column will be the same, Hmm. Hmm. but Sir, you have to add a column multiplication here. mhm. Sir, let me share my entire screen, and then I will Yeah. explain why I am not doing that. Okay, and why I separated this term and I'm writing x naught in terms of one only. There is no see. So let me tell you again. Uh, I am having an equation that is beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. Sir, beta 1, beta 2, these are the slope. These are the slopes. This is intercept. Okay, this is intercept. Fine. Obviously, both are considered as different coefficients. Both are different because we have done the calculation. Both are different. Okay. Now what I did, I I tried to convert this thing, because this is also coefficient. This is also coefficient. Just in general terms, I'm saying I converted this thing and wrote, okay, because beta naught is individual, so let me write beta naught dot one like this, and let me say this x is a feature. Let us suppose that x is a feature which is having all the values as one, सारा values, it is having a one, let us suppose, and ये बाकी rest वाला भी वही है, this is beta 2 x2, ये हो गया। तो ये मेरा जो है पूरा की पूरा एक equation I created. This is the equation which I created. Now the way to obtain this equation, ठीक है, ये तो हो गया। द वे टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स तो हम क्या करते हैं, इफ आई मेक लाइक दिस बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू, ये ऐसा एंट्री करा रो वाइज, और ये एंट्री करा मैंने कॉलम वाइज, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। सो हाउ द मल्टीप्लीकेशन गोस, सर दिस इज ऑफ 1 × 3, this is of 3 × 1. So obviously I can perform the multiplication. How multiplication will be done? Beta naught into x naught plus beta 1 into x1 plus beta 2 into x2. That's the only thing. अभी क्वेश्चन भी आया था, सर आपने ट्रांसपोज क्यों करा?
ये मुझे ट्रांसपोज करना पड़ा एक्स का. आई नीड टू परफॉर्म द ट्रांसपोज ऑफ एक्स. सो आई एम हैविंग अ वेक्टर of beta which I'm representing in a one dimension, in this way. I'm representing this in this matrix representation. तो ये मेरा बीटा हो गया, एंड ये मेरा जो है एक्स हो गया. ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज लूंगा एंड डॉट प्रोडक्ट करूंगा, देन ओनली आई कैन अचीव दीज टर्म्स. तो ट्रांसपोज आई नीड टू टेक. And when I am writing this in a notation of when I'm writing this in a notation of मैट्रिक्स फॉर्मेट, तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया था. ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्स का ट्रांसपोज है, ये देखिए ये मेरा एक्स का ट्रांसपोज है. सो आई एम हैविंग एक्स नॉट हियर, ये मेरा एक्स नॉट है. दिस इज x1, दिस इज x2, दैट्स इट. तो यहाँ ऑल वंस विल बी देयर. अभी बीटा का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. ऑल वंस विल बी देयर. दिस इज इक्वल टू y, ये आपका y है. ठीक है, ये आपका y है. अभी जस्ट आई एम शोइंग अ रिलेशनशिप कि ये मेरा सारा फीचर्स है और ये मेरा टारगेट है. दे शुड बी लीनरली रिलेटेड विद ईच अदर. ऐसा मैं मैट्रिक्स जो है रिलेशनशिप शो कर रहा हूं. तो क्योंकि यू हैव टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम 2D होता है, तो ये मैंने डेटा फ्रेम ही शो कर. आई शो इन दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम, एंड दिस इज हाउ आई कैन राइट. No, I agree with you. What I'm saying is I'm one step behind you, and you cannot just add one column to a matrix. Why? Like so. Okay, so give me 1 second, and I will photograph like what I put it in my notes. So I will Okay, just sir. photograph it and send it to you. What Yeah, I'm sure, trying sure. to say. Sure, So sir. yeah, Sure, just a sir. second. Give me because Okay. so. Yes, you can. Yes, you can do that. Yeah, Sure, sure. If you're having anything, that means uh, if I directly come to some of the step, if you're having any intermediate step, you can tell me, sir. There is some intermediate step. yeah, that's what I'm trying to say. Oh, Okay, okay. so Yeah, I'm sharing it. I you think can. in a group. Okay, you can share an intermediate Uh, step. Okay, so that we can check. Okay, so I think it's MLDL class at 23, 24. I'm not sure whether I because okay, okay. You shared something I'm yeah, on WhatsApp, on because WhatsApp, no? Yeah, yeah. I'm checking. yeah, Okay. Hmm. yeah, okay, this is the step I think we are हाँ, हाँ missing this सर, step. हाँ ये है ना सर. सर आई सर ये तो Because you're not writing that column, हाँ, right? So हाँ. if you सर don't एक्चुअली write that column, this is not correct. सर Y- I am not. It's because I am not showing. I am just showing that this is a data. I am just showing this thing. कि this is my data frame. Okay, okay, Just that's what I told now, that I am representing my data in a data frame format. That's it. Whatever you wrote ना, okay, that okay, is correct, okay, sir. तो वो आपने okay. ये मल्टीप्लिकेशन के पहले यस यस यू आर वो तो करते ही ना सर. वो मल्टीप्लिकेशन तो हो गई ना सर. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग लाइक दिस, तो वो मैंने ये लिख दिया सर. दैट आई हैव रिटन दिस थिंग. अब इसको आप जो अभी आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विच यू क्रिएटेड ना, दिस कैन बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्मेट. इसको हम लिख सकते हैं. ओके, दैट दिस इज माय बीटा बीटा वाला मैट्रिक्स जो भी है आपने भी यहाँ पर लिखा है. ओके, दैट यू कैन पुट इट डाउन. Okay, your beta naught, beta 1, beta 2, you can write it here, and then you can put the values 1 1. This is your x1, x2, यानी x11 x1 x ये लिख सकते हैं, एंड दिस इज x21 x22, वट एवर बी द वैल्यूज आर. ठीक है, सो ऑन. तो ये आप कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपका आई एम हैविंग बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, ये हो गया आपका 3 rows 1 column. This is your 2 rows. ये कैसे पॉसिबल होगा? ये feasible नहीं होगा सर. ठीक है, ये feasible नहीं होगा अभी. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, हाउ यू कैन से दैट दिस इज feasible मल्टीप्लीकेशन? इसको पीछे लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर. ठीक है, आई नीड टू राइट इट बैक. 1 x11 x12 1 x12 x22. Okay, and then you are saying beta naught, beta 1, beta 2. Okay, so this is my 2 cross 3 matrix. This is my 3 cross 1 matrix.
तो ये 3 3 मैच हो गया। अब आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज फिजिबल। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू योर वाई, दिस इज योर टारगेट। तो सर यही मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई रिटन, बीटा डॉट एक्स का ट्रांसपोज। ऑल राइट। ओके, तो मीन वाइल सर ऑल्सो टोल्ड दैट दिस कुड बी वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप। तो आप थोड़ा सा जो है इनको भी स्टेप लिख दीजिए, देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेप, फिर हम आ जाएंगे। ओके, तो हियर आई एम जस्ट मेंशनिंग कि ये मेरा डेटा फ्रेम है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। ठीक है, एंड इफ आई गो एंड चेक आउट द कोड विच आई हैव शेयर्ड विद यू यस्टरडे, कल हम जो पढ़ रहे थे। ठीक है, लेट मी शो द कोड विच वी आर स्टडिंग यस्टरडे। मैं उसी पर ही स्ट्रेस कर रहा था ज़्यादा। ओके, ए बी सी एफ जी, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन कोड। ओके, व्हाट आई डिड in this particular code. Okay. Okay, just a second. This is what I did in the code. Hmm. In this particular code, I added once. ठीक है, np dot once. Okay, fine. And then I concatenate. I was explaining this thing only, that you added once and then you finally concatenated with your x. So यहाँ पर मैं वो जो मैट्रिक्स बना रहा था ना, वो यही शो करने के लिए बना रहा था। ये हियर दैट आपने वंस को ऐड करा एंड देन यू मर्ज विद योर ओरिजिनल फीचर्स, दैट्स इट। मुझे यही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, दैट व्हाई आई डिड इन द कोड, द क्वेरी केम इन दिस रिगार्ड, सो व्हाई। एंड देन फिर एक क्वेरी और आया, सर आपने ट्रांसपोज, व्हाई यू डिड द ट्रांसपोज। तो ये भी मैंने बताया आपको कि बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैन ओनली बी डन व्हेन आई विल बी गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज। ओके, तो वो भी आपने यहाँ पर किया। फाइन, यू परफॉर्म द ट्रांसपोज एंड देन ओनली यू यूज द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपका वो पूरा एक्स जो है वो आ गया। ठीक है, आपका बीटा का भी आ गया। वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, कैसे भी लेना, रो कॉलम, बस इसको क्रॉस लेना है। यदि रो फॉर्मेट में है तो ये कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस होगा तभी जाके दे विल मल्टीप्लाई। तो दैट्स द रीजन आई परफॉर्म्ड एक्स ट्रांसपोज एंड बीटा करा, देन आई एम गोइंग टू गेट द वाई। बस यही लिखना था मुझे। बाकी सर ने बोला कि आप जो है राइट दिस एक्स, ठीक है, इसको जरा जो है आप और इलॉबरेटिव वे में लिखिए। आपने इसको जो है बहुत स्मॉल वे में लिख दिया। यू कंसिडर्ड कंप्लीट बीटा, यू कंसिडर्ड कंप्लीट एक्स। ओके, बेटर देन इफ यू आर हैविंग और भी है आपके पास x1 x2 है तो उनका वैल्यूज पुट अप करिए आप हियर। सो आई पुट द वैल्यू x11 x12 x21 x22। ये आपका एडिशनल कॉलम है ही, बता ही दिया था, और ये आपके पैरामीटर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। ऐसा मल्टीप्लाई वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, हियर यू आर गोइंग टू गेट द वाई। ठीक है, ये हो गया डन। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली आई वाज फोकसिंग अपॉन दीज थिंग्स, क्वेश्चंस इनको लेकर आया था। ओके, सो सर गिवन द इंटरमीडिएट स्टेप कि आप ले लीजिए and that will give you much more clarity. ठीक है, okay, any doubt? Yes, Shri, ask the question. Sir, does it mean that when we want to multiply Hmm. x transpose with beta, Hmm. we are adding x naught because we want to maintain the uniformity हाँ in the हाँ, मेंटेन, dimensions of the हाँ हाँ, तभी matrix? करा था मैंने। आई नीड टू मेंटेन द Yes, यूनिफॉर्मिटी। तो आपका वही क्वेश्चन था और मैं उसी पर फोकस करके समझा रहा था। कोड के अंदर भी yes, हमारा यही आया। ठीक है, ओके, दिस इज द थिंग प्रेजेंट इन द कोड, सो आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, yes. ऑलराइट, Thank you, sir. ये हुआ। एंड देन कल भी एक अच्छा क्वेश्चन जो आया था कि सर आपने इंटरसेप्ट जो है दैट वी टुक वन, एंड व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो सर वी आर हैविंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर द स्लोप बट इंटरसेप्ट वन था। पूरा मैंने कल क्लियर कर दिया था। ठीक है, सेम थिंग मैं आपको अब नोट्स में भी आई एम इंक्लूडिंग दैट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट यस्टरडे एंड आई एम इंक्लूडिंग दैट थिंग इन द नोट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि why you got one intercept, because you have to align along to the इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यही उसका आंसर था, कल भी मैंने दे दिया था, आज मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सो इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वी आर हैविंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीपल फीचर, we still have only one intercept term. That was a good question yesterday. It came, sir, क्यों हुआ ऐसा? Only one intercept term है।
ओके, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इटसेल्फ। तो वो कैरेक्टर लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन ही ऐसी है कि ओनली वन इंटरसेप्ट होगा। दैट इज अ, कल भी मैंने ये बोला था, यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड द सेम थिंग, कि आप उस पर मत जाइए कि इतने सारे फीचर्स हैं, देन वी आर गोइंग टू टेक द, बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल फीचर सो एवरी फीचर शुड हैव इट्स ओन इंटरसेप्ट। नो नो, काइंडली डोंट गो विद दैट। Go with the characteristics of a linear equation, go with the characteristics of linear regression. We are dealing with an assumption actually. No one told कि सैलरी और एक्सपीरियंस लीनियरली रिलेटेड, किसी ने बोला थोड़ी ना कि जरूरी थोड़ी ना कि दोनों ही लीनियरली हो, ऐसा भी हो सकता है। Sir, may I intervene here again? I'm sorry. हम्म, हाँ, yes, Okay. So here is the thing, right? हाँ, When you have two, like say, y as an independent हाँ, dependent variable and x1 and x2 are the independent variable, हम्म, in terms of slope, you are not actually, it's a slope of line. It's a हम्म, slope of a plane because you have now x1 and x2, right? हम्म, इट इज Okay, x1 and so x2। I think this is not, yeah. So this is the when you have x1 and x2, it's actually a plane in a linear space. सर, Okay, हाँ, 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 Okay, you have actually a plane in a linear space and you do not have a line. So there will not be one intercept, हाँ, but the intercept of the plane. So हाँ, you will have multiple beta 1 and beta 2 values, but when you minimize them, the way it will intercept on the x-axis, you will get only ओनली वन, वन one इंटरसेप्ट, point on हाँ, हाँ, x-axis. Okay, हाँ, so ओनली, in terms when you have three or more points, you cannot really visualize it because we can only see in two dimensions, right? वी आर सीइंग इन टू Like डायमेंशनल। yeah. So when you have x1, x2, x3 or more than three independent variables, we cannot really see visualize it. नो सर, We can ओनली visualize, ओनली 2D, यस, ओनली 2D। yeah. So that's why. So we can only visualize a plane, and more than that we cannot visualize. So नो, that's why we will not be able to explain where the point will intercept as यस, such. यस, यस, uh, यस। And sir, for that, I know that few people might have a trouble what sir explained. Okay, I will show you a code. Okay, I will show you the result also what he explained. When I am having more than three features also, then also you are going to see, then also you are going to see such a diagram. That's what he's saying, वो यही कह रहे हैं। Okay, here I am having three features, आई एम हैविंग थ्री फीचर, स्टिल आपको यही 2D विजुअलाइजेशन ही मिलेगा उसका। ओके, सो आई एम हैविंग कोएफिशिएंट्स, दीज कोएफिशिएंट्स, एंड आई एम हैविंग स्टिल वन इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि दैट्स व्हाट अभी वो बोल रहे थे, और यही बात मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, जो उन्होंने बोल दिया वो ही अंडरस्टूड। अब लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। क्या हुआ, वी आर हैविंग ओनली वन इंटरसेप्ट, है ना, ये वो भी कह रहे थे इंटरसेप्ट, यस्टरडे ऑल्सो वी डिड डिस्कस्ड अ लॉट। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक या इक्वेशन में ही ये चीज डिफाइंड है दैट यू आर हैविंग वन इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, हाँ अजम्पशन, दैट इज व्हाट वी टुक अजम्पशन, दैट द फीचर्स आर in linear relationship with the target and independent of each other, ये हमने कहा। and that is there is a single constant term that represents the baseline value of the dependent variable when all the dependent variables are zero। ठीक है, there will be only a single constant term that will representing a baseline value। ठीक है, कैसे, हाउ दिस वी आर गोइंग टू से, कैसे इंटरप्रेट करते हो योर इंटरसेप्ट। सी, the intercept represents the expected mean value of the dependent variable when all the dependent variables are set to zero। It is a mean value of the dependent variables when all independent are set to zero। यदि सारे के सारे इंडिपेंडेंट को जीरो कर दिया जाए, तो ये जो इंटरसेप्ट है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू ऑफ द डिप। अब कैसे, हाउ यू कैन डू दैट। सी, वी आर हैविंग एन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वी आर हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेट मी पुट x इक्वल टू जीरो। सो इफ x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू सी। ठीक है, y मेरा क्या हो गया, c हो गया, यानी द वैल्यू ऑफ y इज इंटरसेप्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ y इज इंटरसेप्ट। सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो भाई मुझे सबको जीरो करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है
The intercept represents the expected mean value of the dependent variable. When all the independent variables are set to 0, it is a point where the regression line intersects with the y-axis in a multi-dimensional space. तो यू आर हैविंग, एक्चुअली यू आर हैविंग अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस, हो गई हो तो यू आर हैविंग अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस. जैसे फॉर एग्जांपल ये 3D है, तो इंटरसेप्ट जो है, इट इज अ पॉइंट वेयर द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस. ठीक है, इट इज अ पॉइंट वेयर दिस इज माई वाई एक्सिस, माई रिग्रेशन लाइन इज कटिंग द वाई एक्सिस. तो मैंने क्या कर दिया, सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जीरो कर दिया. ऑल आर जीरो, कंप्लीट एक्स इज जीरो. when they will be zero when they all will be zero, my regression line will cut the y axis. जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा होगा ना, वो इंटरसेप्ट होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरसेप्ट. ठीक है, ये होगा. एंड देन हैविंग ओनली वन इंटरसेप्ट सिंप्लीफाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉडल. ठीक है, एक बात ये, क्योंकि भाई अजम्पशन ही यही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वन इंटरसेप्ट शुड बी देयर, नॉट मल्टीपल इंटरसेप्ट शुड हैव टू बी देयर. यदि हम ले भी लें, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक मल्टीपल इंटरसेप्ट, तो भाई बहुत टफ पड़ जाएगा. कैसे इंटरप्रेट करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट्स? दैट्स अ क्वेश्चन. हाउ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट्स? और टफ हो जाएगा. ओके, फाइन. सो दैट्स द थिंग. तो हमने क्या करा कि if I need to claim for an intercept, I will say all the independent are zero, and the point where the regression line cuts the y-axis, that is the intercept. ये हुआ. मॉडल सिंपल बनाना है. ठीक है, इंक्लूड सेपरेट इंटरसेप्ट्स फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, विच वुड इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, दैट विल बी अननेसेसरी. यदि आप सेपरेट भी रखते हो तो अननेसेसरी हो जाएगा. ठीक है, unnecessary, you will be increasing the complexity. तो ये नहीं करेंगे हम. तो single intercept we are going to keep, that will capture the overall baseline level of the dependent variable. ठीक है, यानी कि when all the features will become zero, what is the baseline value of y, यानी y कितना हो सकता है, what should be the value of y when all the features will be zero, उसी को ही मैं intercept बोलूंगा, और that will be the baseline value. ठीक है. All right. Well, the coefficients of the independent variable capture the respective effects. और बाकी जो coefficients हैं, ये वाले, ये जो अपने लिखते हो, y equal to beta naught, beta 1, x1, ये they will capture the strength कि जो features हैं x1, x2, how they are related with y, they will capture the strength. And beta naught, that intercept, that will be the baseline value, and I'm going to keep it only 1. ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लेम माई सेल्फ कि हाँ ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा लीनियर रिग्रेशन है. यदि आई एम गोइंग टू टेक दिस मच मोर कोएफिशिएंट्स, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल विल इंक्रीज, एंड आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस प्रॉब्लम. ये नहीं कर पाऊंगा मैं. तो क्या बोला हमने कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करिए आप, एंड एक बेस लाइन वैल्यू अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, तो मल्टीपल इंटरसेप्ट्स यदि आप लेते हो, द मॉडल विल माइट बिकम अनआइडेंटिफाइड, मीनिंग देयर वुड बी एन इनफाइनाइट सोल्यूशन that fit the data equally well. ठीक है, there will be infinite solution, कई हो जाएंगे. Having one intercept helps in identifying a unique solution. ठीक है, तो infinitely many solutions और unique solution भी हमने पढ़ा है. ठीक है, infinitely many solution and unique solutions, यानी कि x equal to y equal to z है, तो ये infinitely many solution है, because 1 equal to 1 equal to 1, 2 equal to 2 equal to 2, 3 equal to 3 equal to 3, तो ये तो infinitely many solution है. ओके, लेकिन यूनिक सोल्यूशन के लिए मेरे पास एक ही x, ओनली वन x, ओनली वन y एंड ओनली वन z शुड बी देयर. ठीक है, ये होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए. तो हम ये सब अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. ऑल वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस फॉर द लीनियर रिग्रेशन, एंड और सिंप्लिसिटी अचीव करने के लिए कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, जस्ट टू अचीव द सिंप्लिसिटी. ओके, बिकॉज अगेन आई एम गोइंग टू टेल, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. यू आर फिक्सिंग द थिंग्स, फिक्सिंग कर रहे हो आप, यानी कि यू वांट टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू लीनियर रिग्रेशन. You want to set an assumption, and how you can set an assumption, because linear regression works on linear equation, and it is written as y equal to mx plus c. Now x can be multiple, features can be multiple,
Correspondingly, intercepts can also be multiple, but stop here. But stop. If we take multiple कोएफिशिएंट्स, है ना, मल्टीपल इंटरसेप्ट ले लोगे तो ये इश्यूज आपके सामने नजर आ जाएंगे अभी। क्या? मॉडल जो है वो टफ हो जाएगा, यू कांट गेट द सोल्यूशन, ठीक है, नहीं मिल पाएगा। कोलिनियरिटी कंसर्न्स भी आ जाएंगे आपको। सेपरेट इंटरसेप्ट फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीड टू द इश्यूज इन मल्टीपल कोलिनियरिटी, मल्टी जो आपको नहीं। तो हम सिर्फ अजम्पशंस को फॉलो करके ही वो कहानी खत्म कर रहे हैं। वी आर एंडिंग द स्टोरी जस्ट फॉलोइंग द अजम्पशन ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन, कि जस्ट कीप ओनली वन 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 इंटरसेप्ट रखिए आप। और हाउ वी आर डीलिंग विद वन इंटरसेप्ट, हाउ वी आर डीलिंग, हम ये कह रहे हैं भाई जस्ट डू वन थिंग, मेक ऑल फीचर्स जीरो। तो जब रख देंगे y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन बीटा टू एक्स टू, जस्ट मेक ऑल एक्स वन एक्स टू ऑल जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो y इक्वल टू बीटा नॉट, तो मुझे एक बेस लाइन वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज माई बेस लाइन वैल्यू, जस्ट कीप दिस बेस लाइन वैल्यू, इतना ही रखो। तो बस इतना आपको जवाब देना है, टू फॉलो अजम्पशंस, ठीक है, एंड टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी, अवॉइड मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, वी आर कीपिंग ओनली वन इंटरसेप्ट, दैट्स इट, इतने ध्यान रखिए आप। और आप कुछ भी कर लो, ये मेरा कोड है उसको जस्टिफाई करने के लिए, दिस इज माई कोड। इन दिस पर्टिकुलर कोड आई टुक लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, आई टुक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, आई टुक एनी रैंडम वेरिएबल ऑफ, दैट मींस आई टुक टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई टुक टू वेरिएबल, एंड दिस इज माई वाई, टू एक्स प्लस ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है, विद अ नॉइस, डिपेंडेंट वेरिएबल विद अ नॉइस, यानी ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें कुछ भी रैंडम वैल्यूज 100 कुछ भी आ रही है, एंड हियर आई मेड एन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, यानी कि y इक्वल टू बी वन एक्स वन बी टू एक्स टू प्लस नॉइस, है ना, वो इंटरसेप्ट कुछ भी नॉइस ये ऐड कर दिया, तो ये मेरा लीनियर रिलेशनशिप हो गया। बस कुछ नहीं, ये मैंने मॉडल के अंदर डेटा फिट कर दिया और आई प्रिंट कर दिया इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, दिस इज माय इंटरसेप्ट, दिस इज माय कोएफिशिएंट। तो आई एम हैविंग हियर ओनली टू इंडिपेंडेंट टू फीचर। अब आप बोलो सर मोर देन टू फीचर करो, टेक मोर देन टू, तो ठीक है भाई, दिस इज अनदर कोड इन विच आई एम टेकिंग थ्री फीचर्स। थ्री फीचर्स है, नॉइस जो है, नॉइस वैल्यू कुछ भी रैंडम वैल्यूज 10 ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स 100 ले लिया, है ना, 100 एंट्रीज ले ली, थ्री 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 कॉलम हो गया, थ्री कॉलम 100 एंट्रीज, एंड आई एम एडिंग नॉइस ऑल्सो इन द डेटा, ठीक है। स्प्लिट करा ट्रेन टेस्ट में, 80% ट्रेनिंग आई टुक, 20% टेस्टिंग आई टुक, लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, मॉडल के अंदर ट्रेन फिट कर दिया, सब कर दिया, एंड हियर आई एम मेकिंग अ प्लॉट। तो अगेन आप देखिए, अब आप बोलोगे ये क्या है, द प्लॉट इज रिलेटेड बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल का प्लॉट यहां पर बना दिया, ठीक है। तो ये मेरी जो दिख रही ना लाइन, ये क्या है, दिस इज द प्रिडिक्टेड लाइन, सो आई एम मेकिंग अ प्लॉट बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल, ये मेरी प्रिडिक्टेड लाइन है प्रिडिक्टेड, प्लेन नहीं है प्रिडिक्टेड, लाइन है प्रिडिक्टेड, ठीक है। सी दिस इज माई प्रिडिक्ट, दिस इज प्रिडिक्टेड वैल्यूज y एक्सिस पर, x एक्सिस पर एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। सो वट एवर यू डू प्रिडिक्ट ना, वो एक लाइन ही आएगा। क्यों आएगा, एक ही लाइन आएगा, वाई, व्हाट इज द रीजन, फॉलो अप द अजम्पशंस, ओके, यू हैव टू फॉलो द लीनियर रिग्रेशन, ये यही आपको फॉलो करना है। सो बीटा नॉट, अभी आपके पास थ्री कोएफिशिएंट्स था, बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, बीटा थ्री एक्स थ्री, ठीक है, ये हुआ, यही हुआ, इसको मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट फॉर्मेट, ये मेरा एक्स वन या एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एंड दिस इज बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इक्वल टू वाई है, ओके। तो भाई आप देख लीजिए, व्हेन आई एम गोइंग टू मेक दिस एज अ डेटा फ्रेम, व्हेन आई एम गोइंग टू मेक दिस एज अ डेटा फ्रेम लाइक दिस, ऐसा ऐसा बनाऊंगा मैं, ओके। तो डेटा फ्रेम में आपके पास रो और कॉलम ही होती है,
यू आर हैविंग रो एंड कॉलम ओनली, तो सीधी सीधी बात है 2D रिप्रेजेंटेशन है ये, 2D रिप्रेजेंटेशन। तो 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो हियर हियर यू आर 2D। ठीक है, तो कितना भी हो आपके पास एनी एन डायमेंशनल डेटा, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट सच सच प्लॉट, यही मिलेगा आपको। वन इंटरसेप्ट, मल्टीपल कोएफिशिएंट्स फॉर द स्लोप, बीटा वन बीटा टू, वो बहुत सारे होंगे। ठीक है, बट कोई इंटरसेप्ट एक ही होगा, बिकॉज फॉलो द अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, नाउ एनी कमेंट्स ओवर इट, प्लीज लेट मी नो, प्लीज पुट अ कमेंट ओवर इट, ओवर दिस कोड। आपके सामने कोड है, 3 फीचर, 100 सैंपल, कुछ नहीं करा मैंने, लीनियर रिग्रेशन में डेटा फिट कर दिया, और ये आपके सामने ब्लू डॉट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज एंड रेड वन इज द प्रिडिक्टेड लाइन। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट है। कोएफिशिएंट्स हैं मेरे पास, ये 3 कोएफिशिएंट्स आर देयर बिकॉज एवरी फीचर इज हैविंग अ कोएफिशिएंट, उसका स्लोप होगा ना हर एक फीचर का। ओके, तो दीज आर द कोएफिशिएंट। स्लोप भी नहीं, उसको थोड़ा सा और होशियारी में दिखाओ आप, स्लोप भी नहीं। स्लोप तो भाई मैं आफ्टर पुटिंग दिस इनटू लीनियर रिग्रेशन तब स्लोप बोल रहा हूं, स्लोप भी नहीं है ये तो डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप। इट इज एक्चुअली डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ये रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, वो स्लोप भी नहीं है भाई। लेकिन आपने ऐसा फिक्स करा, यू प्लेड अ मैच, यू प्लेड अ फिक्सिंग, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ डेटा सेट, यू आर हैविंग अ डेटा सेट, ये था, you are having features x1 x2 x3 x4 and target, या ये भी एक फीचर ही है ना, टारगेट इज ऑल्सो फीचर ना। आई एम हैविंग सर, आपने फिक्सिंग करी, व्हाट फिक्सिंग यू डू, यू सेड कि सर ये मेरा टारगेट है, आई नीड टू अचीव दिस वाई, सो लेट अस अज्यूम कि कि माय फीचर्स आर हैविंग लीनियर रिलेशनशिप विद दिस फीचर विच आई विल से टारगेट, इससे मेरा लीनियर रिलेशनशिप होगा, और सारे फीचर्स का होगा, जो जो भी हैं लीनियर होगा। तो ये जो बीटा वन बीटा टू है ना, दे विल डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। ये स्लोप आप कहते हो, क्यों? क्योंकि यू आर राइटिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग दिस थिंग इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन, एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहां पर भी सी इन द नोट्स, सी इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन where there are multiple independent variables, we still have only one intercept. This is a characteristic of linear regression. You are just following the characteristics of linear regression, you are following the assumptions of linear equation, इसका रिग्रेशन का इक्वेशन का करेक्टर से फॉलो कर रहे हो बस आप। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, तो भैया पूरी कहानी ना अजम्पशन पर बेस्ड है, ये कंप्लीट थिंग इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन। ठीक है, और ये लीनियर रिग्रेशन, ये क्या, ये रिग्रेशन मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर सेट टू बी ब्लैक बॉक्स, अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, हम अज्यूम कर करके वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी। और बिल्कुल बिल्कुल वैलिड बात है कि सर आप आप ये कह रहे हो सर ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट है, तो यार इतने सारे स्लोप है, बीटा वन भी स्लोप है, बीटा टू भी स्लोप है, भैया वो चुपचाप से कल्टी भर लेगा। कैसे कल्टी भरेगा? बोलेगा भाई स्लोप लोप नहीं है, ये कोइफिशिएंट है, वो स्मार्ट मूव करेगा। द पर्सन विल नेवर से स्लोप, वो बोलेगा सर कोइफिशिएंट है ये, दे विल से कोइफिशिएंट एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको ऐसा बोल देगा वो, दिस इज द कोइफिशिएंट एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, और वो बोलेगा आई एम अज्यूमिंग ऑल दिस थिंग्स इन अ फॉर्म ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग कि ऐसा लिखो इसको, राइट इन दिस फॉर्मेट। तो ये सब अजम्पशन का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि यदि सैलरी और एक्सपीरियंस बोला, इफ यू आर हैविंग सैलरी एंड एक्सपीरियंस, सैलरी है एक्सपीरियंस है, क्या मैंडेटरी है कि लीनियर रिलेशनशिप? हाउ हाउ यू केम अप टू दिस कंक्लूजन, व्हाट मेड यू? कोई दूसरा फीचर होगा, इफ देयर विल बी एनी फीचर, उसका रिलेशनशिप यदि लीनियर नहीं है तो व्हाट? सी ये सब अजम्पशंस का खेल है। ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू फिट डेटा इनटू दिस अजम्पशन। रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम we are just following the assumption, that means we are trying to fit the data into this assumption, and हम पता लगा रहे हैं क्या ये हमारा assumption fulfill हो रहा है।
वेदर इट इज सेटिस्फाइंग, क्या हम रीच कर पा रहे हैं टू एनी कंक्लूजन, दैट अवर assumption दैट दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड तो हो रहा है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गेम प्लेड हियर, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो इसने सब जो है व्यवस्थित कर दिया। तो आपके पास यदि 3D भी होगा, ये रहा 3 डायमेंशनल डेटा, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग देम इन अ फॉर्म ऑफ अ वेक्टर नोटेशन। ये उठा के फिर उसका वो क्या कर देगा, रो कॉलम फॉर्मेट में 2D बना देगा। मैं ये लो मैट्रिक्स में 2D बना देगा। तुम आ गए फिर 2D पे। ये तो खेल है पांडास का, ये तो खेल है रो और कॉलम अरेंजमेंट का। वेदर यू आर हैविंग एनी n डायमेंशनल डेटा डजंट मैटर, डजंट मैटर 100 डायमेंशनल डेटा सर, तो भाई आपका मैट्रिक्स का काम आएगा। when your matrix will help you. So you are having 100 dimensional data, okay, come on, put it into a matrix format. तो मैट्रिक्स तो सर रोज एंड कॉलम्स है सर, योर ऑल डेटा विल बी ऑर्गेनाइज इनटू दिस 2D फॉर्मेट, 2 डायमेंशनल, लो हो गया काम खत्म, दैट्स इट, कर दिया 2D में, और शो कर दो 2D पे, लाइन कर दो। अभी वी आर गोइंग टू स्टडी SVM, डिसेंट्री अलग है थोड़ा, ठीक है, तो यही होगा। ऑल राइट, so that's related to the code also. I build up the code for you to show that okay, still I'm getting the 2D and this is what my predicted and the actual points and the lines and everything. अब 2 फीचर लो, 3 फीचर लो, 10 फीचर लो, 100 फीचर लो, यही मिलेगा आपको। ओके फाइन, चलो, yes sir, ask the question. सर इसमें कौन से फीचर बेस्ड है, जैसे हमारे पास एक से ज्यादा फीचर्स अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो कैसे हाँ आइडेंटिफाई करेंगे इन पैरामीटर्स के बेस पे, हाँ हाँ, कोफिशिएंट या स्ट्रेंथ, हाँ पैरामीटर्स बेस्ड ना, तो सर क्या है ये देखिए, हियर इन दिस पर्टिकुलर कोड यू फाइंड दैट कोएफिशिएंट 28, 74, 18, तो सर ये 74 वाला ज्यादा हाईएस्ट कोएफिशिएंट वैल्यू है, यानी ये फीचर नंबर 2 जो है ना, दैट इज मच मोर करस्पॉन्डिंग टू द टारगेट। देखिए ओके। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ वेट और इसको मैं बोलता हूँ बायस। बायस ही वो आपका एरर है, जो ये बोल रहा है ना नॉइस, यहाँ पर इसने बोला नॉइस, नॉइस ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आपका जो भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से, तो ये मेरे कोएफिशिएंट्स है ना, ये होते हैं मेरे वेट, और ये होता है मेरा बायस, ठीक है। तो सर आप देखिए वेट ये ज्यादा, सबसे ज्यादा ये है, देन आई एम हैविंग दिस वेट एंड देन आई एम हैविंग दिस वेट, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द फीचर नंबर 2 इज मोर देन फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली थर्ड वाला से। ओके ऐसे सर, पता थैंक चलेगा सर। ओके, तो हमारा इन्हीं को निकालने का गेम है पूरा, लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट वाला खेल है पूरा। ओके सर, ये स्ट्रेंथ डिफाइन कर देगा। यस बबन सर। सर कुछ एल्गोरिदम में ये फीचर इंपॉर्टेंस होता है, तो क्या हम सर लीनियर रिग्रेशन में कोएफिशिएंट को फीचर इंपॉर्टेंस, देखिए, हाँ से एक फीचर जगह आप, इंपॉर्टेंस। यस सर, यस सर, इन इन आपने इन्हीं नोट्सों में, मेरे नोट्स के अंदर ही एक जगह गया है ये बात, there was a point mentioned in my notes also. At one place it was mentioned that linear regression somehow what also tell the feature importance, लेकिन ज्यादा elaborate नहीं किया गया इस बात को, they haven't elaborated this term so much, but there was a term written that it also shows the feature importance। तो वो अब जाके क्लिक करें आप कि हाउ, कैसे बोला उसने, in my notes also there was one point somewhere mentioned, मुझे याद है पढ़ाते वक्त, कि फीचर इंपॉर्टेंस में भी लीनियर रिग्रेशन वाज, बट वी डोंट उसको फोकस नहीं करते हम। फीचर इंपॉर्टेंस के लिए वी यूज डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, दैट मींस ग्राफिकल वाला जो है, हम इसको नहीं करते। बट इससे भी पता चल रहा है मुझे, बाय कोएफिशिएंट्स वैल्यू दे आर डिफाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, इससे रिलेट कर सकते हैं उन बातों को। ओके सर, ठीक, फाइन, ये रहा। नाउ आई नीड टू टॉक अहेड ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, जो कि नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ बाय लर्निंग दिस नॉर्मल इक्वेशन ना, यू विल अगेन अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्ट। सी नॉर्मल इक्वेशन, सी नॉर्मल इक्वेशन इज एन एनालिटिकल अप्रोच टू सॉल्व लीनियर रिग्रेशन। यू हैव ऑलरेडी डन वन अप्रोच टू सॉल्व इट, वो आप कर चुके हो, है ना, वो स्लोप वाला,
gradient descent आपने you calculated and all those things ना, you did. I am having another approach to solve linear regression, ठीक है, जिसमें I am having least cost square function है ना, वही that is your yp minus y का square, I am having that thing. Okay, same वो है मेरे पास. We can directly find out the value of theta without using gradient descent है ना. Without using gradient descent we can directly find out the value of cost function. Okay, previously when you performed the calculation, okay, calculation आपने करा था yp minus y actual का square that is equal to your cost function, ऐसा करके आप चल रहे थे. then you done the gradient descent वगैरह आपने करा, you put the value of yp and all those करा आपने. Normal equation is saying that you do not have to do all those things. Directly also you can approach and you can get the value of the cost function. How? That's our next question. How? Okay, देखते हैं. Following this approach is an effective and time saving. Okay, an equation which are having maxima, minima, derivative, derivative. Okay, so just ignore them right now. Just follow up the normal equation. Just follow up the normal equation. So it is saying, according to normal equation, according to it, if I'm having three features, x1, x2, x3, for example, so the normal function is written as x ka transpose into x overall inverse multiplied by x ka transpose into y. This is my normal equation where theta is the hypothesis parameter, that is the cost function, x is the feature, y is the target. ये है. तो जस्ट फोकस ऑन दिस टर्म. व्हाट इज रिटन, वो बोल रहा है जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स का इनवर्स डॉट डॉट एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई डॉट एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई. ठीक है, दिस इज माय नॉर्मल इक्वेशन वेयर एक्स इज अ फीचर, वाई इज अ टारगेट. बस. तो फीचर और टारगेट से ही आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन. कोई ग्रेडियंट डिसेंट वाला अभी ऐसा बीच में देयर इज नथिंग नहीं लगाया. ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन है. अब हाउ टू अचीव दिस थिंग एंड द अचीवमेंट इज, उसका कई स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी टोल्ड, आई बता चुका हूं मैं. सी, लेट अस गेट टू द फ्रेश पेज. आई वांट टू डिराइव दिस. हाउ डेरिवेशन करना है इसका. तो देखिए, as I told already, you are having y equal to beta naught plus beta 1 x1 beta 2 x2. This is your equation of multiple linear regression. ठीक है. Similarly, just check out क्या लिख रहे हैं वो. h नॉट या h थीटा इक्वल टू थीटा नॉट x नॉट. अब वो कहां से आ जाएगा थीटा नॉट x नॉट? व्हेन आई पुट हियर x नॉट एक फीचर जो कि सारा वंस है, इफ आई पुट इट हियर तो ये भी बन जाएगा बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, ये भी बन जाएगा. ओके, ये भी हो गया सेम जैसा उन्होंने लिखा है. ठीक है, हियर. ठीक, ऑलराइट, बन गया. एंड देन ऑब्वियसली व्हाट दे डिड हियर, यहां पर क्या करा उन्होंने. ये देखिए, जो मैं आपको ट्रांसपोज वाला इक्वेशन ना, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट्स व्हाट दे डिड. एच थीटा इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स, थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स. सो यू कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, y इक्वल टू ये पूरा मेरा बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 का एक वेक्टर पूरा, एंड ये मेरा x नॉट x1 x2 का एक वेक्टर है. सो लेट अस सपोज आई कैन राइट दिस थिंग एज y इक्वल टू बीटा का ट्रांसपोज इनटू x. ऐसा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है. बीटा का ट्रांसपोज इनटू x ऐसा कर दीजिए, या आप इसके अकॉर्डिंग ही लिख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग थीटा ट्रांसपोज इनटू x. ठीक है, थीटा ट्रांसपोज इनटू x, दैट मींस थीटा इज अ योर व्हाट, योर कोएफिशिएंट्स. ठीक है, थीटा इज योर कोएफिशिएंट. तो थीटा का ट्रांसपोज इनटू x इसने लिख दिया.
अब मेरे पास जो है, आई एम हैविंग द इक्वेशन ऑफ अ कॉस्ट फंक्शन, जो कि याद करिए आप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉस्ट फंक्शन इन लीनियर रिग्रेशन। वो कहां से आई, ये देखिए, ये ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ओके, हाउ हाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉस्ट फंक्शन, वापस से रिवर्ट करिए। एरर जो हुआ करता था, व्हाट आई एक्सप्लेन हियर, व्हाट वाज द एरर, एरर होता था y p माइनस y actual, then yp minus mx plus c, because y is mx plus c, ये होता था। देन फिर हमने स्क्वायर कर दिया था इसका, ओके, वी डिड अ स्क्वायर ऑफ इट। फिर हमने सारा एरर्स का समीशन कर दिया था, तो टेक द समीशन ऑफ इट, ठीक है, टेक द समीशन ऑफ इट, ये भी कर दिया था। और फिर मैंने मीन के लिए कैपिटल एन से ऑल द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर दिया था। एंड फॉर द सिंप्लिसिटी दे आर टेकिंग एन एस टू एम, ईजी बनाने के लिए उसको टू एम ले रहे हैं वो यहाँ पर, ये देखिए, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल। सो उसको टू कर दिया, टू एम, वेयर समीशन इज फ्रॉम वन टू एम, टू एम कर दिया इन्होंने। ये आपका जो मैंने लिखा है ना अभी, ये वही है ये, ठीक है, वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल, ये वही है, प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर समीशन, ये आपका दिस ऑल्सो योर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, जो अभी आपने सीखा पहले। अब भाई इसने क्या करा, ये देखिए, दिस इज योर प्रिडिक्टेड, दिस इज योर एक्चुअल, उसने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया इसको। सी, वो कह रहा है कि भाई ये ऐसी इक्वेशन सॉल्व मत करो आप, डोंट डू लाइक दिस, ऐसे मत करो, यू डू वन थिंग, क्या करो आप, कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उसका भी एक ऐसा मैट्रिक्स टाइप बनाइए, और जो एक्चुअल वैल्यूज है उसका भी बनाइए। आप ऐसे लिखते थे यहाँ पे, यू स्टार्ट योर इम्प्लीमेंटेशन इन दिस वे ओनली, ये ऐसे तो करा था आपने, वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल। तो कह रहा है ये ऐसा मत करो, you just write like this, ऐसा मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट। ओके, सो दैट विल बी योर, ये आपका प्रिडिक्टेड नंबर वन, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द प्रिडिक्शन, दिस इज सेकेंड वैल्यू ऑफ द प्रिडिक्शन, दिस इज थर्ड वैल्यू ऑफ द प्रिडिक्शन, दिस इज फोर्थ वैल्यू ऑफ द प्रिडिक्शन, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो इट्स सेइंग जस्ट राइट लाइक दिस, ऐसा मैट्रिक्स फॉर्मेट में वो बोल रहा है, ऐसा लिख लो आप। तो यहाँ एच थीटा एच थीटा लिख रहा है भाई, वो एच थीटा मतलब वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज लिख रहा है, इट इज राइटिंग प्रिडिक्टेड वैल्यूज। एक्स जीरो का मतलब ये है फर्स्ट रो, एक्स वन का मतलब है सेकेंड रो, एक्स एम का मतलब है एमएथ रो, ओके, एमएथ रो, बिकॉज वो आगे जाके इसी को ही, इसी को, अब ये देखिए, दिस इज अ प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ये प्रोडिक्शन है, ठीक है, ये आपका प्रिडिक्शन था। उसने इसी को होशियारी से, हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, तो y इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, थीटा ट्रांसपोज इनटू x, ये पढ़ा था हमने अभी, जस्ट आई प्रिपेयर्ड दिस थिंग ना, ये y इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज इनटू x, ये बना लिया था अभी हमने। तो इट स्मार्टली पुट द सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसने, यहाँ देखो, उसने ये एच थीटा, ये जो वट एवर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर ना, उसने इसकी जगह थीटा ट्रांसपोज एक्स नॉट, थीटा ट्रांसपोज एक्स वन, थीटा ट्रांसपोज एक्स एम, ये कर दिया। और जो एक्चुअल वैल्यूज है उसने इट कन्वर्टेड, ओके, यू आर वाई ओनली ना, यू आर एक्चुअल, सो यू आर वाई, ठीक है, उसने उसको वाई लिख दिया। टेल मी, टिल हियर यू अंडरस्टूड और नॉट, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, ये ऐसा था, और आइदर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज हाउ यू रिटर्न बीटा नॉट एक्स नॉट, ठीक है, ऐसा कर दिया। You converted it into the matrix multiplication and you found that one I have to transpose, किसी एक को I need to transpose करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा multiplication successful होगा। So I did transpose beta transpose dot x, so this is the value of y, बस keep it, equation number 1, keep it।
देन देन आई टोल्ड कि भाई, for derivation of cost function you write like this: y prediction minus y actual. So वो ये कह रहा है कि ऐसा बस इक्वेशन लिख के मत करो, रिप्रेजेंट इट इन दिस वे, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा रिप्रेजेंट करो आप, रिप्रेजेंट इट दिस वे. ओके, फाइन. एंड देन आपने बोला ये y नॉट मीन्स द फर्स्ट रो का आउटपुट, y1 मीन्स सेकेंड रो का आउटपुट, थर्ड रो का, फोर्थ रो का आउटपुट. सो इसने बोला आगे कि लेट अस राइट दिस थिंग बिकॉज y इक्वल टू बीटा का ट्रांसपोज इनटू x. तो एक काम करिए आप, राइट लाइक दिस कि y नॉट जो है दैट विल बी बीटा का ट्रांसपोज इनटू x नॉट, यानी फर्स्ट रो. ठीक है, द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो. देन नेक्स्ट विल बी y1. This will be equal to beta का ट्रांसपोज x1. That means the features which are present in the first row. ठीक है, मतलब ये आपका फर्स्ट रो था, ये सेकेंड रो. देन y2, तो ये हो जाएगा बीटा का ट्रांसपोज x2 एंड सो ऑन, ऐसा होता चला जाएगा. दैट्स व्हाट दे हैव क्लेम्ड हियर. वो ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा एंड देन फिर ये लिखा कि थीटा ट्रांसपोज x0, थीटा ट्रांसपोज x1, ये लिख रहा है वो. ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए उसने उसको एक्सपांड कर दिया. एंड हाउ द एक्सपांशन डन, ऐसा बोला उसने, ऐसा बोला कि here you are having, this is your x0 feature, this is your x1 feature, this is your x2 feature. ठीक है, theta naught is the coefficient of this feature, theta 1 is the coefficient of this feature, and theta n is the coefficient of this nth feature. ठीक है, तो अब देखिए इसी फॉर्मेट में उसने पूरा लिखा है, एक्सपांड कर दिया उसने पूरा. इट्स टोल्ड कि जस्ट एक्सपांड करो उसको पूरा. ठीक है, तो ये देखिए एक्सपेंशन, थीटा नॉट 0 एक्स नॉट, थीटा 1 0 x1. 0 का मतलब क्या है भाई, 0 हियर आपका फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x0 x1 x2 दीज आर द वैल्यूज. ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा का, क्योंकि डेटा कैसा होगा, हाउ द डेटा लुक लाइक, डेटा विल लुक लाइक ऐसा, डेटा ऐसे दिखेगा. ओके, दिस इज हाउ द डेटा लुक्स. ओके, दिस इज योर टारगेट, और ये आपका होगा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव. ये आपका पहला वाला रो, दिस इज अ फर्स्ट रो, जिसको बोल रहा है कि यार मेरी एक्स रो, एक्स ये जीरोथ रो है मेरा. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, दिस इज माय जीरोथ रो. तो एक्स नॉट की वैल्यू, यानी इसकी इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इनकी वैल्यूज, और ये मेरा जीरोथ रो. फिर नीचे वाला मेरा वनथ रो, देन ये सेकेंड रो, देन ये थर्ड रो. ऐसा मेरा नंबर ऑफ रोज है. ठीक है, वो ये सब ले रहा है. लेट अस सपोज आई एम हैविंग m रोज, तो वो m रोज तक नीचे चला गया. एंड लेट अस सपोज आई एम हैविंग n कॉलम्स और n फीचर्स, तो xn तक आ गया. यू कैन सी xn. तो n कॉलम्स और m रोज. ठीक है, अभी कहीं कुछ उसने ट्विस्ट करा ही नहीं है, जस्ट वो रिप्रेजेंटेशन है बस उसका ये. ओके, तो m रोज एंड n कॉलम्स ये है, जस्ट इट इज रिप्रेजेंट, कुछ नहीं करा उसने. ठीक है, एंड माइनस वाई एज यूजुअल है, तो ये इंडिविजुअल रोज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. एंड ऑब्वियसली यू आर हैविंग देयर करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट. तो भैया कोएफिशिएंट तो यार एक्स नॉट, ये थीटा नॉट, थीटा नॉट, थीटा नॉट, इट विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन योर फीचर. सबसे मल्टीप्लाई होगा भाई, वो सेम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, वो नहीं है. ठीक है, तो ये उसने लिख दिया. आई गेस देयर शुड नॉट बी एनी डाउट हियर, नहीं होना चाहिए. ये उसने लिखा पूरा, और फिर देखो, फिर देखो क्या हुआ. मुझे क्या करना रहता है, मुझे क्या करना रहता है, ध्यान देना. अकॉर्डिंग टू माई स्क्वायर एरर, अकॉर्डिंग टू माई स्क्वायर एरर, आई नीड टू स्क्वायर दिस टर्म.
मुझे इसको पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज वाई प्रिडिक्टेड एंड दिस इज वाई एक्चुअल। तो आई नीड टू कंप्लीटली स्क्वायर, वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर करना पड़ता है। आई नीड टू डू दिस थिंग। तो डज इट शोज फीजिबल दैट कैन यू स्क्वायर द कंप्लीट थिंग? इस पूरे को स्क्वायर कर सकते हो? इज इट फीजिबल दैट यू कैन स्क्वायर इट कंप्लीटली? नो। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान देना। दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। वो ये कह रहा है कि जो वाई प्रिडिक्टेड का मैट्रिक्स है, ये जो वाई प्रिडिक्टेड का मैट्रिक्स है माइनस वाई एक्चुअल है, आई नीड टू डू द स्क्वायर ऑफ कंप्लीट थिंग, है ना? बिकॉज वाई पी माइनस वाई करते थे एरर निकालने के लिए। ये मेरा जनरल अप्रोच था टू कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन। अब आप बोल रहे हो इस पूरे का स्क्वायर करो, तो ये कैसे होगा? नहीं। तो मैट्रिक्स में इफ आई नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? ए स्क्वायर क्या होता है इन मैट्रिक्स? देखो आगे, इट इज सेइंग दैट to get the squared value, to get a square value of a matrix, multiply the matrix with its transpose। ये फंडा होता है। मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो जाके आपको उसको स्क्वायर मिल जाएगा कभी भी। लिसन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ यू नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज कैलकुलेटेड एज ए इन ए डॉट ए ट्रांसपोज। ये होता है ए स्क्वायर। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट्स द प्रॉपर्टी। तो उसने ये जो इक्वेशन थी ना इतनी बड़ी लिखी हुई, ये इट रोट इट इन दिस वे कि एक्स थीटा माइनस वाई, ऑब्वियसली वो एक्स थीटा है ना, ये एक्स थीटा ही तो है, ये एक्स थीटा है, एक्स इंटू थीटा मल्टीप्लीकेशन है एक्स थीटा। तो इट रोट एक्स थीटा माइनस वाई का ट्रांसपोज, यानी पहले मैट्रिक्स, ये ओवरऑल मैट्रिक्स है ना, दिस इज द मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स है। ओके, पूरा मैट्रिक्स है। हियर ऑल्सो लेट मी शो, ये पूरा मैट्रिक्स है। और यदि आपको इसका स्क्वायर करना है तो आप इस मैट्रिक्स को एक्स थीटा माइनस वाई, दिस इज योर मैट्रिक्स, एंड एक्स थीटा माइनस वाई का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज, ये आपको करना पड़ेगा। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। नॉट टेल मी टिल हियर यू अंडरस्टूड और नॉट, टिल हियर यू अंडरस्टूड और नॉट। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज। Okay, that's what you have to do. Okay, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। वी आर हैविंग फ्यू मोर थिंग्स टू डिराइव। ओके, और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आगे आई विल बी राइटिंग दिस थिंग एज अ कॉस्ट फंक्शन। ओके, देन आई विल बी टेकिंग अ पार्शियल डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा और स्टेप्स है जो मुझे कवर करना है। देन आई विल बी फाइनली गेटिंग द नॉर्मल इक्वेशन। ओके, दैट्स व्हाट आई विल गेट। ठीक है, तो अगेन आई विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वन मोर lecture ahead to solve this thing. So matrix multiply by its transpose will be the square। ठीक है, ये है पूरा वो। तो इसको हमने ऐसा फॉर्मेट में लिखा, देन वी विल फर्दर सॉल्व इट टू अचीव दिस थिंग करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस लेक्चर। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।